نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم احبہ، کچھ بیان کرنے سے پہلے بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پڑھے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ عالم ہوں نہ علامہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ عالم ہوں نہ علامہ، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دوں حق کا پروانہ، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دوں حق کا پروانہ، اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ بابرکت گھڑی جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اور فیوز و برکات سے منور و مجلہ ہو رہے ہیں، قرآن میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، اور جس زمین پر سجدہ نہ ادا ہو اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے، زنا کرنے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا زنا کرنے سے بڑا جرم ہے، قتل کرنے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا قتل کرنے سے بڑا جرم ہے، رشوت کھانے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے۔ ارے سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی شرک کیا تھا، کوئی چوری کی تھی، کیا کیا تھا؟ ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ اس مسلمان کو ہوش نہیں جو روزانہ دن میں 5 دفعہ 26 سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہے، پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے، آرام سے چائے پیتا ہے، آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے، آرام سے اخبار پڑھتا ہے۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ جس نے فجر کے سجدوں کا انکار کیا، پھر ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر مغرب اور عشاء کے سجدوں کا مذاق اڑایا۔ گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، لیکن یہ بھی نماز کا مذاق ہی ہے۔ اور 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا، 8 دن جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا، وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے، تو کیا ہوگا اس دن جب جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ سے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا، آیا نہیں جاتا، سردی بڑی ہے، گرمی بڑی ہے، اندھیرا بہت ہے، کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں؟ کیا قبر کی گرمی یاد نہیں؟ کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے؟ کیا جہنم کے عذاب بھول گئے؟ وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے، وہ محبوب خدا اللہ کا دیدار بھول گئے، وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں، اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں، نہ کسی مرد کو ہوش آئے، نہ کسی عورت کو ہوش آئے، نہ کسی بوڑھے کو ہوش آئے، نہ کسی بچے کو ہوش آئے، نہ بازار بند ہوں۔ ارے میرے بھائیوں، حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہڑتالیں کی،
20-20 दिन तक बाजार ना खोले, अगर नमाज के लिए अपनी दुकानों को बंद करते तो कोई जालिम ना आपके माल पर हाथ डालता, ना आपकी इज्जत और आबरू पर हाथ डालता। दिन दिहाड़े डाके पड़े, क्यों पड़े? कि हम बागी हो गए, हमने अल्लाह से बगावत कर दी। क्या जुमे के दिन सिर्फ अल्लाह बुलाता है? कि जुमे में इतने कहां से आ जाते हैं और बाकी दिनों में क्यों नहीं आते? और ऐसी वफाओं वाला अल्लाह कि जमीन बोले ए अल्लाह इजाजत दे मैं गुलिस्तान कॉलोनी को निकल जाऊं, समंदर बोले मौला इजाजत दे हम चढ़ जाएं, फरिश्ते बोले मौला इजाजत दे हम इन्हें हलाक कर दें। और जिसके सजदों का इनकार हुआ पड़ा, जिसकी शरीयत का आठों बाजार में मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी गैरत खुद जोश में आ रही है कि ये मेरे बने हुए गंदे पानी के बने हुए गंदे नुत्फे से बने हुए। कुरान कहता है अलम यकुन नुत्फतम मिन मनिय्यिन युमना, एक नापाक कतरा था ना जो रहमे मादर में रखा गया, सुम्मा काना अलका, फिर वो पानी का कतरा लोथड़ा बना, फखलक़ फसव्वा, फिर अल्लाह ने उसे पैदा किया और फिर ठीक हमवार किया, फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा, उससे जोड़ बनाए, कोई मर्द बनाई कोई औरत, कोई मर्द बनाया कोई औरत बनाई। कहा गौर कर, अब तेरी आंखें देखती हैं, तेरी जबान का तोती बोलता है, लोग अश अश करते हैं तेरी गुफ्तगू पे, तेरी गुफ्तार पे सदके जाते हैं और तेरे लहजे के जमाल को देखते हैं और तेरे सीने का जोर और तेरे पंजों की ताकत और तेरे कड़ियल बाजू और तेरी चौड़ी छाती और तेरे गुलाब की पत्तियों जैसे होंठ। ए इंसान, ये सब कुछ कहाँ तराशा गया? माँ के रहम में, उस तारीकी में जो 3 पर्दों में थी, तेरा सर तेरे घुटनों में था, वहां तेरे रब ने तेरे अंदर नस्वानियत की सलाहियतें पैदा की। आज तू काज़ी कुज़ाक है, आज तू मिनिस्टर है, आज तू वजीर आजम है, आज तू जोरावर है, आज तू मुफ्ती है, आज तू अल्लामातुद्दहर है। आज जब तू चलता है तो लगता है कयामत चल रही है, तेरा कदेराना वजूह सनव्वुर को शर्माता है। ए मेरे भाइयों, ए मेरे दोस्तों, ये सब कुछ किसने बना के दिए? ये वजूद किसने तुम्हें अता किया है? ये वजूद तुम्हें किसने बख्शा? मेरी ग़िज़ा खाकर जिंदा, मेरी रोटी से जिंदा, मेरे दिए हुए गोश्त से जिंदा, मेरे दिए हुए निज़ाम से जिंदा, ये मेरे ही मुनकिर बन गए। 1500 रुपए का मुलाजिम आपको चाय की प्याली ना दे तो आप कहते चल छुट्टी कर, हम कोई और रखेंगे। इतना बड़ा वजूद जिसने बख्शा, आंखों में चिराग जलाए, कानों में फोन लगाए, दिमाग में बर्क की रोएं दौड़ाई, दिल को धड़काया, सारे बदन में खून पहुंचाने का निजाम चलाया, करोड़ों किस्म की फैक्ट्रियों को हरकत दी और ग़िज़ाओं को, हड्डियों को ग़िज़ा पहुंचाई और दांतों को ग़िज़ा पहुंचाई, बालों को ग़िज़ा पहुंचाई, ज़बान को बोलने की ताकत दी, दांतों को काटने की ताकत दी, दो यहाँ नालियां लगाई, सांस की अलग कर दी और मैदे की अलग कर दी और वहां पर्दा लगाया, बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, कि मैदा खुल जाए और सांस की तरफ जाने वाली नाली का मुंह बंद कर देता है। वो अल्लाह इतनी ताकत वाला कि सांस की नाली का मुंह बंद करे और मैदे की नाली का मुंह खोले और उसमें से फिर ग़िज़ा को गुजार कर आंतों से मैदे में पहुंचाए, फिर करोड़ों किस्म की फैक्ट्रियों को हरकत दे, उसमें से खून को खींचे, ग़िज़ाओं को खींचे, नाखून को ग़िज़ा, हड्डियों को ग़िज़ा, खून को ग़िज़ा, खून खुद ग़िज़ा लेके चल रहा है। और ये नाखून मेरा रब खींच ले तो हम तो एक नाखून का शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये जोड़ बना दिए, सीधा कर दे तो हम इसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। है कोई अकल में आने वाली बात कि सिर्फ 1500 रुपया दिया, उसने चाय की प्याली ना दी तो उसे निकाल दिया, उसने ग्राहक को डील ना की तो उसे निकाल दिया। इतना बड़ा वजूद किसने तुम्हें बख्शा? मेरा अल्लाह कहता है ये इतना बड़ा वजूद कहां से खरीद के लाए? वल अर्द वदअहा लिल अनाम, ए मेरे बंदो, मैंने ही तो तुम्हें बिछा के दी। फाकिहतुन, देखो मैंने ही तुम्हारे लिए फल निकाला। वल हब्बुल अस्फ़ि वर रैहान, तुम्हारे लिए गल्ला भी बनाया और भूसा भी बनाया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर भी तुम मेरी नेमतों का इनकार करते हो, फिर भी तुम मेरे बागी बनते हो, फिर भी तुम मुझे झुठलाते हो। देखते नहीं हो रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, मैं तुम्हारे मशरिक़ का भी रब हूँ, मग़रिब का भी रब हूँ, शिमाल का भी रब हूँ, जनूब का भी रब हूँ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर भी तुम मेरी नेमतों का इनकार करते हो। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, तुम्हें मिट्टी से बनाया, जिनको आग से बनाया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर भी तुम मेरी नेमतों का इनकार करते हो, फिर भी तुम मुझे झुठलाते हो। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुझे वजूद बख्शा, मैंने पूरी कायनात को वजूद बख्शा और मैं ही पूरी कायनात को मिटा दूंगा। इदश शम्सु कुव्विरत,
सूरज पर मौत का राज तारी हो जाएगा। वइदल कुबूर बुअथिरत, कब्रें उखाड़ पछाड़ दी जाएंगे। वइदल जिबाल सुज्जिरत, पहाड़ रुई की तरह उड़ा दिए जाएंगे। वइदल वुहूश हुशिरत, ये वहशी जानवर तुम्हारे मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। मेरा अल्लाह कहता है मैं पूरी कायनात को मिटा दूंगा, मैंने पूरी कायनात को वजूद बख्शा और मैं ही पूरी कायनात को मिटा दूंगा। कुल्लु मन अलैहा फान, हर शे को फना है। व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, सिर्फ तेरे रब की वाहिद जात है जिसको बका है। मेरे भाइयों, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, तू आगे की तरफ देख या पीछे की तरफ देख, जिस तरफ निगाह उठा के देख, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे साथ क्या किया और तूने अपने रब के शुक्राने अदा किया। मेरे भाइयों, अजान की आवाज पर कितनी है जो अजान की आवाज पर कितनी दुकानें बंद होती हैं, अजान की आवाज पर कितने हैं जो मस्जिद की तरफ कदम उठते हैं, औरतों को देखकर कितनी निगाहें नीचे झुकती हैं, मौसीकी की सुल्तान पर कितने हैं जो अपने कान को बंद कर लेते हैं। माँ बाप के आगे कौन है जो सर को झुकाते हैं, माँ बाप के आगे कौन है जो अदब से खड़े होते हैं। जब ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो ऊपर वाला नाराज हो चुका है। अब वो चाहे अमेरिका को इस्तेमाल कर ले, चाहे वो हिंदू को इस्तेमाल कर ले, चाहे वो पानी को सैलाबों के नाम से इस्तेमाल कर ले, पाकिस्तान का सैलाब देख लो, चाहे वो हवाओं को तूफान के नाम से इस्तेमाल कर ले, चाहे वो आसिफ और काशिफ को इस्तेमाल कर ले, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मेरे भाइयों, इन तमाम बातों पर हमें और आपको अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला हमसे जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हो उसे माफ़ फरमा कर इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल अता फरमा ले। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, होगा खुदा का सामना सर को झुका के देख। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।